امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی کامیابی کے چراغ گل ہونے کی بات اب سرکاری نتائج کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے۔ ڈیموکریٹس نے سینٹ پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا ہے۔ یہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ میں برتری کی کیا اہمیت ہے۔ کروڑوں امریکیوں کے انتخابات میں ووٹنگ کے بعد ہفتے کو رات گئے ریاست نیواڈا میں کیتھرین کوریٹس کی تھوڑے سے ووٹوں سے کامیابی نے بالآخر قومی سیاسی جنگ میں فیصلہ کن نتیجہ پیش کر دیا۔ امریکی کانگریس کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی 49 نشستوں کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کو 50 نشستیں حاصل ہو گئی ہیں، اور اگر ریپبلکن جارجیا میں سینٹ کی نشست جیت جاتی ہے تو اس صورت میں بھی دونوں پارٹیوں کی برابری کی تعداد یعنی 50-50 نشستیں ہو جائیں گی۔ اس صورت میں نائب صدر کمالا ہیرس ٹائی بریکنگ ووٹ ڈال سکیں گی، جو موجودہ حالات میں سینٹ میں ڈیموکریٹس کی برتری کی اہم ضمانت ہے۔ یقیناً یہی صورتحال پچھلے 2 برسوں سے چلی آ رہی تھی، اور اس سے صدر جو بائیڈن کے لیے مزید 2 سال وفاقی عدالتوں میں اپنی پسند کے ججوں کو نامزد کرنے اور اپنے انتظامیہ کو بڑے پیمانے پر جس طرح سے وہ مناسب سمجھتے ہیں چلانے کی راہ برقرار رہے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی کوئی نشست غیر متوقع طور پر کسی جج کی ریٹائرمنٹ یا موت کی وجہ سے خالی ہو جاتی ہے تو ریپبلکن پارٹی صدر جو بائیڈن کی پسند کو روکنے کے قابل نہیں ہوگی۔ ڈیموکریٹس کو یاد ہے کہ کس طرح 2016 میں اس وقت کے سینٹ کی اکثریت کی ریپبلکن رہنما مچ میکونیل نے براک اوباما کے نامزد امیدوار جج کے معاملے کی سینٹ میں سماعت کو روکے رکھا تھا۔ ریاست نیواڈا میں ڈیموکریٹ کی کامیابی کا مطلب ہے کہ 6 دسمبر کو جارجیا سینٹ کا رن آف چیمبر کے کنٹرول کا تعین کرنے کے لیے اب کوئی اہم مقابلہ نہیں رہا۔ تاہم امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹس کے لیے 51 سیٹیں حاصل کرنا بہتر ہے۔ ایک نشست سے قطعی اکثریت یعنی 51 ارکان کے ذریعے یقینی طور پر اکثریت کو سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس سے 2024 میں بھی مدد ملے گی جب پارٹی کو زیادہ خطرے والی نشستوں پر انتخابات لڑنا ہوں گے۔ اس بات کا اب بھی امکان ہے کہ اگرچہ یقین نہیں ہے کہ ریپبلکن ایوان نمائندگان میں ایک بہت ہی چھوٹی سی اکثریت حاصل کر لے گی، جس سے صدر کے لیے کئی طرح کے مسائل پیدا ہوں گے اور وہ انہیں تنگ کرتی رہے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا قانون سازی کا ایجنڈا ختم ہو چکا ہے، اور انہیں زیادہ جارحانہ ریپبلکن نگرانی کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے امید کی ایک کرن موجود ہے، بشرطے کہ وہ اندرونی اختلافات کے باوجود مؤثر طریقے سے حکومت کرنے اور اپنے سیاسی امور چلانے سے قاصر نہیں ہو جاتے۔ تاریخی نظائر کے برخلاف امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کے نتائج اب بھی سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر اپنی ساکھ بہتر ہوئی ہے۔ ان کے مشیر اب صدر کے طور پر دوسری مدت کے لیے ان کے ارادے کے بارے میں زیادہ اعتماد سے بات کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سوشل میڈیا پر ایران میں اجتماعی سزائے موت کے حوالے سے جعلی مہم کے بعد غلط معلومات پر مشتمل ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ مشہور شخصیات اور صارفین نے انسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں ایک خاتون کو ایرانی جھنڈا اٹھائے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس کے عنوان میں لکھا ہوا تھا: ایران نے 15,000 مظاہرین کو موت کی سزا سنائی ہے، تمام باغیوں کے لیے سخت سبق۔ انسٹاگرام نے تب اس پوسٹ کو غلط معلومات کے طور پر ٹیگ کیا اور کہا کہ آزاد حقائق کی جانچ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس معلومات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پوسٹ کو، جسے بعد میں ہٹا دیا گیا تھا، اداکارہ سوفی ٹرنر اور ووئلا ڈیوس سمیت مشہور شخصیات نے بھی شیئر کیا تھا۔
जस्टिन ट्रूडो ने पीर के आखिर में ट्वीट किया कि कनाडा तकरीबन 15,000 मुजाहिरीन को सजाए मौत देने के ईरानी हुकूमत के वहशियाना फैसले की मजम्मत करता है। कनाडा की हुकूमत के तर्जुमान ने बैनुल-अक़वामी खबर सादारे CNN को बताया कि पोस्ट को इब्तदाई रिपोर्टिंग के जरिए आगाह किया गया था, जो नामुकम्मल थी और इसमें ज़रूरी सियाको सबाक की कमी थी और इसकी वजह से इसे हज़फ कर दिया गया है। दूसरी जानिब ईरानी कानून साज मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्क की अदलिया मुजाहिरीन के साथ कोई नरमी ना दिखाए, लेकिन अब तक इस हफ्ते अदलिया ने सरकारी तौर पर एक शख्स को मौत की सज़ा सुनाई है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़िश्ता हफ्ते खबरदार किया था कि दूसरों को भी ऐसी ही सज़ा मिलने का खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा कि मुजाहिरों के मुसलसल जबर के साथ सज़ाए मौत और सज़ाए मौत के इल्ज़ामात पर बहुत से मज़ीद फ़र्द जुर्म जल्द ही जारी की जा सकती हैं। लकी मरवत में दहशतगर्दों के पुलिस वैन पर हमले में 6 एहलकार शहीद हो गए हैं। लकी मरवत में दहशतगर्दों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया। फायरिंग के नतीजे में 6 एहलकार शहीद हुए। पुलिस के मुताबिक शोहदा में ASI और दीगर एहलकार शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों ने लकी मरवत में अब्बासिया रोड पर वैन को निशाना बनाया। इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG पुलिस से पुलिस वैन पर हमले के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला ने कहा कि वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, शोहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आला ने शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी की दुआ की और गमज़दा लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लकी मरवत में पुलिस वैन पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की और पुलिस शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए शोहदा को खराजी अकीदत पेश किया है। इनका कहना है कि मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले बेटों को कौम सलाम पेश करती है। दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ हरावल दस्ते का काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शोहदा को एजाज़ात और शोहदा पैकेज दे। शोहदा के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार करते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर व्हाइट हाउस में वापसी का ऐलान करते हुए 2024 में सदारती इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया है। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2024 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला अमेरिका के दुश्मन मुस्तकबिल की खातिर किया है। उन्होंने कहा कि ये कैंपेन सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की है। आपका मुल्क आपकी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कई माह से इशारा दिया जा रहा था कि वो एक बार फिर व्हाइट हाउस जाने की दौड़ का हिस्सा बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार 2016 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब हुए थे। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने नस्ल परस्त अमरीकियों की तवज्जो हासिल की और इसी बिना पर कामयाब भी हुए। उन्होंने जून 2015 में रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर सदारती इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया था और पार्टी के अंदर दीगर मुमकिन उम्मीदवारों को शिकस्त देते हुए पार्टी की नामजदगी हासिल कर ली थी। सियासत में डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी कई दहाइयों पुरानी है। उन्होंने पहली बार 1987 में सदारती इंतखाबात लड़ने में दिलचस्पी जाहिर की। 2000 में उन्होंने रिफॉर्म पार्टी का सदारती उम्मीदवार बनने की कोशिश की। माजी में वो अपने स्कैंडल्स, खवातीन के हवाले से नाजेबा रिमार्क्स, अमरीकी सदूर पर शदीद तनकीद के हवाले से खबरों का हिस्सा बनते रहे।
डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इनके असासे $10 बिलियन से जायद हैं। ट्रंप की पहली 2 शादियां नाकाम रहीं। साबिक मॉडल मलाइना से ट्रंप ने 2005 में तीसरी शादी की। ट्रंप शोबिज इंडस्ट्री और ज़राए ब्लॉग से भी खासे मुतल्लिक रहे। उन्होंने मशहूर टीवी सीरीज दी अप्रेंटिस के 14 सीजन्स की मेज़बानी की और मुतअद्दिद किताबें भी लिखीं। लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग में ऑरेंज लाइन ट्रेन टर्मिनल के करीब छोटा ड्रोन तैयारा गिर गया। पुलिस के मुताबिक छोटे ड्रोन तैयारे की बम डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग करवाई गई है, ताहम इसमें बारूदी मवाद नहीं मिला। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट ने रिमोट कंट्रोल ड्रोन तैयारे को कब्जे में ले लिया है। रिमोट कंट्रोल तैयारे को कहां से ऑपरेट किया जा रहा था, इसके बारे में तहकीकात की जा रही हैं। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से भी वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सीसीपीओ लाहौर ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हदायत की है। मुतलका दारे शवाहिद की बुनियाद पर रिमोट कंट्रोल तैयारे का जायजा ले रहे हैं, जहां सीनियर पुलिस अफसरान और मुतलका दारे भी वहां मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया है कि छोटे ड्रोन तैयारे में कैमरा नस्ब था। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है। हलाल चांदनी चौक प्लीज आओ, इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।